vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O creature. hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. So, आप सभी का शंकर लॉज की शनिवार शाम की मीटिंग में स्वागत है। आज हमारे वक्ता ब्रदर शिखर अग्निहोत्री जी हैं, जो कि नाम से ही शिखर टॉपरिंग पर्सनालिटी हैं आज के हमारे। और आज का टॉपिक है एलिगोरी ऑफ समुद्र मंथन इन पुराणास। पुराणों में समुद्र मंथन का दृष्टांत या रूपक कथा, एक कहानी जिससे छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने के लिए व्याख्या की जा सकती है, इसके बारे में शिखर जी देंगे। शिखर जी का इंट्रोडक्शन के लिए मैं मानसी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज शिखर जी का इंट्रोडक्शन दे दें। मानसी जी sir. Good evening everyone and a very warm welcome to brother Shikhar Agnihotri ji. Born and brought up in Lucknow, he spent his childhood in the nurture of theosophical family. His mother, Vasumati Agnihotri ji, who has been a member of Theosophical Society for many years, used to take him along with him for various theosophical study camps in many cities, which inclined young Shikhaji as well towards the teachings of theosophy. He became an official member in 2008. As per his academic achievements, he did his graduation in nautical sciences from Mumbai University and worked in a shipping company for 10 years. His contribution to theosophical work is admirable. Currently, he is residing with his family at Adyar and volunteering in Adyar Administration Office, along with his wife, Catalina Ji, who is imparting ethical education in the recently founded School of Theosophical Society and working for Adyar Theosophical Academy. He is instrumental in writing many articles for the Theosophist, the Indian Theosophist, Dharmapath, Wake Up India, and French and Spanish theosophical magazines. A national and international speaker appointed by the Indian section of the Theosophical Society, he has been conducting many lectures, study classes, seminars, along with school and college visits to various parts of India for the propagation of theosophy. Also, he is conducting many youth camps in and around India, and especially at Bhovali, the Himalayan center of the Theosophical Society. He is the founder member of Pragya Lodge Lucknow and Maitri TOS Group Lucknow as well. They have also started a YouTube channel, Pragya CS Studio, to take ahead the teachings of theosophy in a simple manner, which is being conducted in many languages, including English, Hindi, Spanish, and Portuguese. Recently, Pragya CS Studio created a universal theosophical calendar for the year 2021, which is free for all. Those who wish to can contact him for a soft copy. I request Brother Shikhar Agnihotri ji to enlighten us today with his talks on the allegory of Samudra Manthan in Puranas. Thank you, Sister Mansi. आइए शिखर जी। You can hear me, sir? Yes, yes. Okay. Thank you, Sister Mansi, for that introduction, and Brother Rajiv ji, Mathur ji, for giving this opportunity for sharing some thoughts on this subject. I'll just invoke Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha.
शंकर लॉज के पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, और सभी हमारे बंधुओं को सादर प्रणाम, आत्मीय प्रणाम। आज का जो विषय, जैसा कि माथुर जी ने बताया, एलेगोरी ऑफ समुद्र मंथन इन द पुराना। समुद्र मंथन का जो एक वर्णन आता है, हम सभी लोग परिचित होंगे उससे पुराणों में, उसका एलेगोरिकल या रूपक वाला अर्थ जो है वो, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसका संपूर्ण अर्थ जानने के लिए तो शायद व्यक्ति को अर्हत होना पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचे बिना उसका संपूर्ण अर्थ है वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है। लेकिन इससे पहले हम विषय में जाएं, इस विषय के इम्पोर्टेंस को हम समझें कि ये सिंबॉलिज्म या एलिगोरीज, कई बार हम लोग इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने थियोसॉफी की जो टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ लिया है और उसके बाद हमें कुछ शायद उतना रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से सिंबॉलिज्म्स एंड एलिगोरीज जो रेस्पेक्टिव रिलीजन्स में, कल्चर्स में है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एच.पी. ब्लवात्स्की ने दोनों सेक्शंस में, दोनों कॉस्मोजेनेसिस और एंथ्रोपोजेनेसिस में एक एक पूरा सेक्शन सिंबॉलिज्म पे रखा है। और ऐसा नहीं है कि केवल उसमें हिंदू रिलीजन या सनातन धर्म के सिंबॉलिज्म है, उसमें उन्होंने पूरे जो वर्ल्ड रिलीजन, वर्ल्ड माइथोलॉजी है, उसके एलेगोरीज, क्या क्या सिंबॉलिज्म यूज किए गए हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो ये सिंबल्स हैं वो केवल कुछ सत्य नहीं ही बताते हैं, बल्कि ये कुछ कॉस्मिक प्रोसेस, जो बड़े ही विशाल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे जो प्रोसेस हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और साथ ही उनकी कंपैरेटिव स्टडी करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में हम पढ़ते हैं, टू एनकरेज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, कि जो बात एक धर्म में कही गई है वही बात दूसरे धर्म में कही जा रही है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स अलग हैं, कुछ कहानियों का रेफरेंस अलग है, लेकिन मोर और लेस जो बेस है, जो मीनिंग है, वो सेम है। साथ ही हमें ये समझने को मिलता है, कमिंग टू हिंदुइज्म, कि इट इज फुल ऑफ सच एलेगोरीज एंड सिंबॉलिज्म। जितना अधिक यूज हिंदुइज्म में हुआ है, उतना शायद ही कहीं हुआ हो, और जिसकी वजह से we have given rise to personifications of so many devis, devtas, 33 crores, जैसा कि हम पढ़ते हैं 33 करोड़। लेकिन कैसे हम उनको समझें कि देवी और देवता जो हैं, those are the powers and functions of one supreme, और उनके अपने अपनी एक्शंस हैं, उनके अपने फंक्शंस हैं। लेकिन जब हम उनको पर्सोनिफाई कर देते हैं, रेवरेंस देने तक भी ठीक है, लगभग जब हम उनसे कुछ मांगने लगते हैं अपने फेवर का, पर्सनल बेनिफिट का, देन वी गो इनटू अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर। और एलेगोरी क्या है? एलेगोरी इज अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, एक कहानी के फॉर्म में जब हमें कोई मॉरल लॉ बताया जा रहा है, कोई नेचुरल प्रोसेस बताया जा रहा है, या कोई आध्यात्मिक सत्य बताया जा रहा है, उसको इंटरेस्टिंग बना के, बजाय इसके कि वो सिंपल बहुत ही कठिन भाषा में बताया जाए, तो वो एक कहानी के तौर पे बताया गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कहानी जो है वो उस फैक्ट से या उस तथ्य से कुछ मेल खाती हो। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो कुछ और हो सकता है, जैसा कि हम लोग भी देखेंगे। और सामान्यतः चूंकि ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कई बार उन कहानियों को जो हम पढ़ते हैं, हम उनको लिटरली ले लेते हैं। और आजकल भी ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि काफी लोग पुराणों का या माइथोलॉजीज का इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उन इंटरप्रिटेशंस को देखें, तो वो उन कहानियों को सच मान के और उनके सिंबॉलिज्म, मतलब उन कहानियों को ही बेस बना के उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट व्हाट दे आर, इट मींस दे आर एट सम पॉइंट थिंकिंग कि वो कहानियां ही अपने आप में कुछ कह रही हैं, जबकि कई बार ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, और वो कहानी केवल एक कवर अप होती है वास्तविक सत्य को बताने के लिए। और चूंकि इन इंटरेस्टिंग रूप में इन सत्यों को हमारे सामने कहानी के रूप में रखा गया है, लेकिन एक सामान्य आदमी को बताने के लिए कि भाई कॉस्मोजेनेसिस क्या है, एंथ्रोपोजेनेसिस क्या है,
मनुष्य कौन है, ईश्वर कौन है, मैन गॉड एंड यूनिवर्स क्या है, एक सिंपल मनुष्य को बताने के लिए कहानियों के फॉर्म में बताया गया, लेकिन जाने अनजाने ये हम लोगों के अंदर एक अंधविश्वास या सुपरस्टिशन या ब्लाइंड बिलीफ का भी कारण बन गया। और एज ए थियोसॉफिस्ट या एज ए मेंबर ऑफ पीएस ये हमारी ड्यूटी है कि एटलीस्ट वी स्टडी फॉर आवरसेल्व्स एंड लेटर शेयर इट विद अदर्स, ताकि उनमें भी ये स्पार्क ऑफ इंक्वायरी जागे और ये चीज़ों को जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करें थियोसॉफी की लाइट में। We should study these allegories in the light of theosophy। क्यों? क्योंकि studying the mythology in the light of ब्रह्म विद्या या थियोसॉफी की लाइट में हम जो पढ़ते हैं, that is one of the most direct ways of putting theosophical study to practice। एक हो सकता है हम थियोरेटिकल पढ़ते जाएं और उसको मेमोराइज करते जाएं और ठीक है अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई भी करते जाएं, लेकिन चूंकि हम सभी इन कहानियों को सुनते सुनते बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं डीप हमारे मन में कंडीशनिंग ये रहती है कि जो हमने कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, चारों तरफ देखी हैं, वो कुछ लेवल तक हमें अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए हालांकि बहुत सारी कहानियां इर्रेशनल हैं, अतार्किक हैं, और इसीलिए शायद जो नई जनरेशन आ रही है जो कि बहुत लॉजिक बेस्ड है, वो धर्म की तरफ से विमुख होती जा रही है, या तो धर्म की तरफ से विमुख होती जा रही है या सुपरस्टिशन की तरफ बढ़ती जा रही है। दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही सत्य से दूर हैं। तो इसीलिए हमें थियोसॉफी की जो स्टडी है उसको इन माइथोलॉजीज या सिंबोलिज्म और एलेगोरीज को पढ़ने में लगाना चाहिए, और तब हम वास्तव में समझ पाएंगे कि कितनी गहराई तक ये टीचिंग्स जो हैं हमें अफेक्ट करती हैं और जो हम पढ़ते हैं उनमें क्या सच्चाई है। HPB खुद लिखती हैं कि ऋषिज एंड गॉड्स, डेमन्स एंड हीरोज हैव हिस्टोरिकल एंड एथिकल मीनिंग्स दैट इज फाउंड इन द एक्सोटेरिक हिंदू स्क्रिप्चर्स। पुराणों में हमें मिलते हैं, और लेकिन साथ में वो ये कहती हैं कि जगह जगह पर इनमें ब्लाइंड्स हैं, उनमें आपको कई तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे, कहीं पे एक बात कही जा रही है, कहीं पे दूसरी बात कही जा रही है, तो लगेगा कि ये तो या तो एक जगह सही है या दूसरी जगह। लेकिन जब हम उसको एसोटेरिकली पढ़ते हैं, यानी उसके गूढ़ अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, दे विल ऑल कम टू द सेम मीनिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब राजीव जी ने आज के लिए सब्जेक्ट की बात कही तो मैं बहुत समय तक सोचता रहा कि क्या सब्जेक्ट चुना जाए, क्योंकि आजकल इतनी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं, तो there is no point in repeating the same thing again and again। तो कई सब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे लगा कि ये लिया जाए, लेकिन फाइनली अनजाने ही अचानक all of a sudden this thing came, and I shared with him that we'll try to discuss this subject। And a few days back only, बहुत ही एक coincidence शब्द हम लोग कहते हैं, भले ही ignorance of law is coincidence, कि आज ही के दिन बड़ा एक संयोग है कि आज के दिन मोहिनी एकादशी भी है, जो कि वैशाख महीने की जो एकादशी होती है उसको मोहिनी एकादशी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन व्रत रखा जाता है, और बेसिकली वो है कि आपको परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। और मोहिनी जो है वो आज का जो हम लोगों की कहानी है, आई मीन मोहिनी इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द एलेगोरी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। So it's quite a pleasant coincidence। But just couple of things before going into the study, कि जो हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे या जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो उसमें कुछ चीज़ें HP ब्लावास्की की कलेक्टेड राइटिंग से ली गई हैं, कुछ सीक्रेट डॉक्ट्रिन से हमने ली हैं, और कुछ डॉक्टर I.K. टैमनी की जो पुस्तक है उससे ली हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम फाइनल मीनिंग ना समझ लें, ये ना समझ लें कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया दैट इज द फाइनल थिंग। इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट इन द लाइट ऑफ अवेलेबल थियोसॉफिकल लिटरेचर कि हम इस पौराणिक कथा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, और ये हर एक के लिए एक रिक्वेस्ट भी है और एक इंस्पिरेशन भी है कि
अगर हम इससे इंस्पायर होते हैं तो हम अपना इस पे कंटेम्पलेशन करें, हो सकता है हमें कुछ और नए मीनिंग्स समझ में आए। दूसरी बात यह कि ये कहानी एक्चुअली बहुत ही गहरी है। सामान्य रूप से देखने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। तो इसमें हम लोग बहुत जो भी अवेलेबल है उसमें बहुत गहराई में ना जाके, समय की बाध्यता है तो उतना ही कवर करेंगे जो एक ओवरव्यू हमें मिलता है इस पूरी कहानी से। तो समुद्र मंथन हम सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें से एक इवेंट है, एक कथा है जिसको चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क भी कहते हैं। और इसका वर्णन भागवत पुराण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में और शतपथ ब्राह्मण में कई जगह आया है। और अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि कहानी में थोड़ा बहुत हेर फेर रहता है, कहीं पे कुछ बात है, कहीं पे थोड़ा बहुत है, बट मोर और लेस इट्स द सेम थिंग which explains the origin of Amrita by the churning of ocean of milk। यानी क्षीर सागर, समुद्र को सागर भी कहते हैं तो इसको हम सागर मंथन भी कह सकते हैं और क्षीर सागर मंथन भी कहते हैं। क्षीर सागर अर्थात दुग्ध सागर जहाँ पे विष्णु जी विश्राम करते हैं, तो क्षीर सागर मंथन, ओशन ऑफ मिल्क जिसे कहा गया है, उसको मत कर अमृत को पाने की ये एक कथा है। और क्षीर जो है वो हिंदू माइथोलॉजी में अगर देखें और विश्व के उद्भव की कहानी देखें तो क्षीर को या दुग्ध को इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एज द यूनिवर्सल ईथर, यानी जो सब जगह व्याप्त है। आकाश भी कह सकते हैं उसको, स्पेस भी कह सकते हैं, ब्रह्म पदार्थ भी कह सकते हैं, जो कि हर जगह व्याप्त है। और एक हिंट देखिए पुराण में हमें मिलता है कि ओशन ऑफ मिल्क इज द फिफ्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ 7 ओशंस। ना यहाँ पे फिफ्थ जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि 5 जो नंबर है वो बड़ा ही मिस्टीरियस है। वो एक ही समय में मनुष्य के अंदर शाश्वत जीवन और नश्वर जीवन, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, दोनों को वो करता है, रिजेंबल करता है ह्यूमन में। तो हम सभी जानते हैं ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सा प्रिंसिपल है मनुष्य में, ये हम लोग 7 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों एस्पेक्ट रहते हैं। वो हमारा 5th प्रिंसिपल है, माइंड प्रिंसिपल। सो बेसिकली समुद्र मंथन को एक लेवल पे हम अपने मन में होने वाला मंथन भी मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और साथ ही ये भी जान के हम सभी लोग जानते होंगे कि अंकोर वाट कंबोडिया में जो मंदिर है, वहाँ की जो टेम्पल है, वहाँ भी ये देवासुर जो के बीच में चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क, समुद्र मंथन की जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक चित्र उकेरा गया है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो सनातन धर्म की शाखाएं थी वो काफी दूर दूर तक फैली थी। अब हम लोग आते हैं कहानी पे। तो कहानी हम सभी लोग मोर और लेस जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिफ्रेश करने के लिए कि इंद्र जो स्वर्ग के देव राजा हैं वो अपने हाथी पर थे ऐरावत पे, और सामने से दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनको एक फूलों की माला ऑफर करते हैं, जो कि उन्हें स्वयं कई जगह आया है, स्वयं विष्णु जी से प्राप्त हुई, कहीं आया है कि किसी डिवाइन देवी से प्राप्त हुई है या किसी से भी प्राप्त हुई। वो दुर्वासा जी उन्हें इंद्र को ऑफर करते हैं। इंद्र एक्सेप्ट कर लेते हैं गिफ्ट, लेकिन वो उस माला को अपने हाथी जो है उसकी ट्रंक पे रखते हैं और किसी वजह से वो माला जो है वो नीचे गिर जाती है और हाथी जो है ऐरावत उनके पैरों के नीचे आ जाती है। इसके भी अलग अलग कहानियों में अलग अलग रीजंस दिए गए, लेकिन मेन चीज ये है कि ये देखकर ऋषि दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जैसा कि उनका स्वभाव है, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक प्रसाद है, भगवत प्रसाद है, दैवी प्रसाद है, जिसके की हमें आदर करना चाहिए था, रेस्पेक्ट करना चाहिए था, लेकिन बजाय उसके वो हमारे बैड बिहेवियर के कारण उसके हमने एक तरीके से इंसल्ट कर दी। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र को श्राप देते हैं, सभी देवताओं को श्राप देते हैं
कि वो सभी श्री च्युत हो जाएंगे, क्योंकि वो जो माला थी वो श्री का प्रसाद था। तो श्री मतलब ऐश्वर्य, वैभव, स्ट्रेंथ, एनर्जी, फॉर्च्यून जो भी था वो सब उनसे छिन जाएगा। तो ये पार्ट था, लेकिन ये कहानी में डिफरेंट जगह डिफरेंट मीनिंग्स आए हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि ये हम लोग भी जानते हैं कि जब किसी ब्लेसिंग का, किसी पावर का, किसी शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं तो वो प्रकृति हमसे छीन लेती है। यहाँ हम सोच सकते हैं दुर्वासा ऋषि भाई हमेशा क्रोधित रहते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो केवल एक माध्यम है हमें बात समझाने के लिए, लेकिन वो एक नेचुरल लॉ है कि जब भी हमारे पास कोई शक्ति है उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो वो प्रकृति हमसे, कर्म का नियम जो है वो हमसे छीन लेगी, जब तक कि हम उस शक्ति का वास्तविक मूल्य, वास्तविक जो वर्थ है वो नहीं समझ लेते। जैसा कि जब थर्ड आई वॉज एट्रोफाइड, थर्ड रूट रेस में मनुष्य के पास एक तीसरी आंख भी होती थी, यहाँ पे हम सब जानते हैं, जो कि पीनियल ग्लैंड हो गई है, लेकिन उसका मिसयूज किया गया तो वो अंदर चलती चली गई और ऑलमोस्ट अब एक तरीके से सुप्त अवस्था में। इसी प्रकार से जो अलग अलग डिस्कवरीज वैज्ञानिक करते हैं, वो चाहे डायनामाइट हो, न्यूक्लियर पावर हो, बायोकेमिकल पावर्स हो, उनका ठीक है वो शक्ति हमें मिली है, लेकिन उसका उपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसको सही तरीके से नहीं उपयोग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि चारों ओर कितना डिस्ट्रक्शन होता है और कितना उसका दुष्प्रभाव होता है। हमने प्रकृति को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमने पृथ्वी को, वायु को, पेड़ों को, जल को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए या कैसे छोटी छोटी ट्रैवल करने के लिए भी हम बाध्य हैं, हम नहीं कर सकते। एक छोटे से इनविजिबल वायरस के कारण भले ही हम उसको किसी पे ब्लेम कर दें, लेकिन बेसिकली इट इज अ कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट विल कीप कमिंग बैक until and unless we improve our ways of living। और चूंकि हम सभी उस ह्यूमैनिटी के पार्ट हैं तो अपने अपने स्तर पे हम सभी को उस कर्मा को भोगना पड़ेगा। तो कमिंग बैक टू आवर स्टोरीज, दुर्वासा जी ने जो श्राप दे दिया उसके बाद जो दैत्य लोग थे, असुर लोग थे, जो कि बाली उनके प्रमुख थे, दैत्यराज बाली, उन्होंने अटैक किया और युद्ध हुआ। सो देवता लोग हार गए और दैत्यों ने पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल कर लिया आता है, लेकिन या कहिए त्रिलोकी पे कंट्रोल कर लिया। त्रिलोकी पे जब भी कंट्रोल करने की बात आती है तो उसको हम लोग अपने फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल लेवल से समझ सकते हैं। फिर हारने के बाद देवता लोग जो थे वो एक ग्रुप में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको विष्णु जी के पास ले जाते हैं और विष्णु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भाई हमारी मदद करिए। तो विष्णु जी कहते हैं, उन्हें एक डिफरेंट एडवाइस देते हैं। बजाय इसके कि वो जाके दैत्यों से युद्ध करने लगे, वो देवताओं को कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप असुरों से या दैत्यों से जो भी हैं, आप एक संधि कर लीजिए, एक डिप्लोमेटिक संधि कर लीजिए और उनसे कहिए कि समुद्र का मंथन करके हमें एलिक्सिर ऑफ लाइफ या अमृत तत्व जो है वो निकालना है, और उससे हम सभी का फायदा होगा। और समुद्र में और भी अधिक अदर रत्न हैं, पर्ल्स हैं, वो सब निकलेंगे तो हमारा आपका दोनों का फायदा होगा। ये कह के आप उनसे संधि कर लीजिए और इस काम को शुरू करिए। देवता लोग जाते हैं, उनसे कहते हैं, और दैत्य लोग भी इस बात को मान जाते हैं कि भाई अच्छी बात है, अगर अमृत निकलेगा तो हमें भी मिलेगा, हम भी उसको लेंगे और हम अमर हो जाएंगे। अब जो चर्निंग ऑफ द समुद्र मंथन का कार्य था वो बहुत ही बड़ा कार्य था, तो उसके लिए एक हमें रॉड चाहिए या मथानी चाहिए। तो जो मंदार पर्वत है उसको एज मथानी चुना गया। और अगर एक हमें डोरी भी चाहिए होती है, जैसे हम लोग एक तरीके से खींचते हैं दूसरे तरीके से खींचते हैं, उसके लिए चुना गया नागराज वासुकी, जो कि भगवान शिव के गर्दन के अराउंड रहते हैं। और इस प्रकार, लेकिन क्वेश्चन उठा कि मंदराचल को वहां तक ले कैसे जाया जाए, क्योंकि वो बहुत ही भारी है और कई बार देवों ने और दैत्यों ने कोशिश की उठाने की, लेकिन कई बार वो गिरा
और उसके नीचे दब के काफी देवों दैत्यों की मृत्यु भी हुई। तो ऐसे में भगवान विष्णु अपीयर होते हैं और वो उस मंदार पर्वत को उठाते हैं और समुद्र के किनारे रख देते हैं। लेकिन जब चर्निंग ऑफ द ओशन शुरू होता है तो चूंकि उसके नीचे कोई बेस नहीं है मंदार पर्वत के नीचे, तो वो डूबने लगता है। तो पुनः भगवान विष्णु कूर्म अवतार में आते हैं, यानी एक टॉर्टॉइस या टर्टल के फॉर्म में आते हैं और उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे सहारा, उसको फाउंडेशन देते हैं। फिर चर्निंग रिस्टार्ट होती है, समुद्र मंथन फिर शुरू होता है और एक तरफ वासुकी जो नागराज हैं, एक तरफ दैत्य होते हैं और एक तरफ देवा होते हैं, और दोनों तरफ से वो खींचते हैं बारी बारी और चर्निंग शुरू होती है। और फिर समुद्र से चीजें निकलना शुरू होती हैं, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। और उसमें एक जो काफी सारी चीजें निकलती हैं, जिसमें विष है, अमृत है, और उसको अलग अलग उसके साथ कहानियां जोड़ी गई हैं। लेकिन एक कहानी इसमें और जुड़ी हुई है कि भगवान विष्णु को मालूम था कि जो वासुकी नागराज हैं उनको जब फन की तरफ से खींचा जाएगा तो वो पॉइजनस फ्यूम्स छोड़ेंगे, तो जो भी उस तरफ होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब उसको किया क्या जाए, तो उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग किया। उन्होंने देवताओं को सर पकड़ने के लिए दिया और पूंछ जो थी वो दैत्यों को दी। लेकिन दैत्यों को लगा ये उनका अपमान है, क्योंकि पूंछ किसी भी पशु की पकड़ना उनके हिसाब से एक अपमानजनित कार्य होगा। तो दे वांटेड टू, दे इंसिस्टेड कि हम तो सर को ही पकड़ेंगे और देवताओं को आप पूंछ पकड़ाइए। और वंस इट हैपेंड, तो जो भगवान विष्णु चाहते थे दैट हैपेंड, और देन इट कंटिन्यूड। और फिर सागर मंथन में जो डिफरेंट प्रकार की औषधियां थी वो डाली गई और फिर मंथन चालू हुआ और उससे 14 रत्नास यानी 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। जनरली ये जो नंबर है 14 का, यस, हम देखते हैं पुराणों में 7 नंबर, 14 नंबर्स या 7 के जो इस तरह मल्टीपल्स हैं उनका यूज किया जाता है, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है, उसके माध्यम से कुछ हमें बताया जा रहा है। लेकिन अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अगर हम देखें तो कहीं पे 9 बताया गया है, कहीं पे 10, समथिंग एनीथिंग बिटवीन 9 to 14 जो रत्न है वो सागर मंथन से निकलते हैं। और वो कौन कौन से रत्न हैं, मैं केवल 14 का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। कि लक्ष्मी जो कि देवी ऑफ फॉर्च्यून एंड वेल्थ, जो कि विष्णु जी के पास चली जाती हैं। फिर उसमें से अप्सराएं निकलती हैं, रंभा, मेनका, पुंजितशला, जो गंधर्वों के पास चली जाती हैं। फिर वारुणी निकलती हैं जो कि असुरों के पास चली जाती हैं। फिर कामधेनु या सुरभि, विष ग्रांटिंग जो गाय हैं वो निकलती हैं, जो कि ब्रह्मा जी के पास चली जाती हैं, जो जिन्हें ऋषियों को दे देते हैं ताकि वो अपना जो यज्ञ करते हैं उसमें जो दूध और घी और जो भी उन्हें चाहिए हो वो हमेशा उनकी पूर्ति होती रहे। ऐरावत हाथी निकलते हैं जो कि इंद्र के द्वारा लिए जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है कि ऐरावत तो इंद्र के पास पहले से थे, तो यहाँ वो कैसे फिर से निकल रहे हैं। और यही सब कॉन्ट्रडिक्शंस हमें बताते हैं कि हमें इन कहानियों को लिटरली नहीं ले लेना चाहिए। उच्च श्रवास, द 7-headed डिवाइन हॉर्स, भी उससे समुद्र से निकलते हैं जो कि दैत्यराज बाली के पास जाते हैं। कौस्तुभ मणि जो कि मोस्ट वैल्यूएबल डिवाइन ज्वेल है वर्ल्ड में, वो भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। पारिजात, द डिवाइन फ्लावरिंग ट्री जो है विद ब्लॉसम्स दैट नेवर फेड, टेकन टू इंद्रलोक बाय देवास। तो जो पारिजात वृक्ष है हम सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि उसका जो वो कभी सूखता नहीं है, मुरझाता नहीं है, वो इंद्र के पास चले जाते हैं। और शारंग, पावरफुल बाव यानी जो धनुष है, वो भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। साथ ही उसमें से चंद्र, द मून, जो कि भगवान शिव के माथे पे है, वो भी निकलते हैं। शंख,
निकलता है जो कि भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। कल्प वृक्ष, ए डिवाइन विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष, इन सब शब्दों को हम लोग, सब तो नहीं, कुछ को हम लोग आगे देखेंगे। फिर हलाहल या कालकूट, द पॉइजन, द वेरी स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड पॉइजन जब वो निकलता है तो उससे सभी मतलब तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है कि इसको कैसे डील किया जाए। उस समय भगवान शिव कहते हैं, कहानियों में आता है कि वो उसको विषपान करते हैं और उसके इफेक्ट से उनको भी थोड़ा हल्का सा प्रभाव पहुंचता है। तो ये देख के जो पार्वती जी होती हैं वो अपनी शक्ति से भगवान शिव के गले में ही उसको रोक देती हैं और इसीलिए उनका जो गला है वो नीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका एक नाम नीलकंठ भी कहा गया है। और इसके बाद फाइनली धन्वंतरी जी, जो कि हेवनली फिजिशियन यानी सबके जो चिकित्सक हैं उनके गुरु माने गए हैं, जनक माने गए हैं, वो निकलते हैं एक पॉट के साथ जिसमें कहा जाता है कि अमृत है। और कई जगहों पे आप देखेंगे कि धन्वंतरी जी को और अमृत के कलश को अलग अलग रत्न माना गया है, कहीं पे एक ही माना गया है, लेकिन बेसिकली मोर और लेस इट्स द सेम थिंग। तो जब धन्वंतरी जी उस कलश को लेके निकलते हैं तो जैसे ही दैत्य लोग उसको देखते हैं कि ये अमृत है, वो लड़ाई लड़ने लगते हैं, छीनने लगते हैं और उसको छीन के एक से दूसरे को पास करने लगते हैं। एक से दूसरे के पास वो जाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसको पी सके। लेकिन ये सब देखते हुए भी जो देवता लोग होते हैं वो थोड़े शांत रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनसे प्रॉमिस किया था कि केवल आप ही लोग इस अमृत का पान कर पाएंगे और दैत्यों को ये नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जब देवता लोग विष्णु जी की तरफ देखते हैं तो विष्णु जी तुरंत मोहिनी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एन्चेंटिंग देवी का रूप धारण कर लेते हैं और उनको देखकर जितने भी दैत्य लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो कंप्लीटली अमृत की बात को भूल जाते हैं और पूरी तरीके से उनके मोहिनी के वश में हो जाते हैं, कंप्लीटली हिप्नोटाइज्ड। और इतना वो भगवान विष्णु के कंट्रोल में हो जाते हैं कि वो स्वयं कहते हैं कि ये अमृत का पात्र है, आप जिसे चाहें इसे बांटें। और वो उनसे वचन भी ले लेते हैं कि असुर लोग उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे जब वो बांट रही होंगी इस अमृत को। और ऐसा जब उन्हें वचन मिल जाता है तो वो धीरे धीरे सभी देवताओं को एक लाइन में और असुरों को एक लाइन में बिठाती हैं और धीरे धीरे सभी देवताओं को वो अमृत देते जाते हैं, सभी देवता उसको पीते जाते हैं। ऐसे में एक असुर जो थे नेम स्वरभानु, वो अपने को देवता का रूप धारण करके उस लाइन में शामिल हो जाते हैं और उस कुछ अमृत को पी लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अमृत उनके गले से नीचे उतरता, सन गॉड सूर्य और चंद्र जो हैं ये तुरंत भाप जाते हैं और वो तुरंत मोहिनी अर्थात भगवान विष्णु को ये बताते हैं। और विष्णु जी क्षण भर में अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का जो यहाँ से गर्दन और जो धड़ है वो अलग अलग हो जाता है। और उस दिन से जो हेड है दैट इज कॉल्ड राहु एंड द बॉडी इज कॉल्ड केतु, which both later became the shadow planets in astrology, और उनको आउटर सिस्टम में वो भेज देते हैं। और जब दैत्यों को ये रियलाइज होता है कि अरे हमारे साथ तो छल हुआ है, वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और तुरंत देवताओं पर अटैक कर देते हैं। लेकिन देवता लोग अब अमृत को पी चुके हैं तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और अमर हैं। और उस समय जब उनकी फाइट असुरों से या दैत्यों से होती है तो वो असुरों को हरा देते हैं और दैत्यों को त्रिलोकी से हटा के देवता लोग पुनः अपना जो शासन है वो उस पर शासन कर लेते हैं। एंड हियर एंड्स द स्टोरी जो हम लोग पढ़ते हैं। अब anyone who reads this story with an open mind will see at once कि इसमें इतने सारे होल्स हैं जो तर्क की बेसिस पे नहीं उतरते हैं, या जो डिवाइन, जो हम डिवाइन कॉन्शियसनेस के बारे में कहते हैं, इट इज यूनिवर्सल इम्पार्शियल। इतनी जगह पे हम देखते हैं कि यहाँ पार्शियलिटी हो रही है, किसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब अगर हम देखें ओपन माइंड के साथ पढ़ें विदाउट एनी
बाइगोटरी, विदाउट एनी ब्लाइंड बिलीफ, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा है, और कुछ ना कुछ नहीं, इसके 7 लेयर्स ऑफ मीनिंग है। और इस स्टोरी को हम 2 तलों पे पढ़ सकते हैं एटलीस्ट, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं 2 तल कौन से हैं। एक है कॉस्मोलॉजिकल वे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस होल सोलर सिस्टम, द वर्ल्ड, और दूसरा इंडिविजुअल, यानी प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों लेवल पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एज अबव सो बिलो, यानी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बात पिंड पे लागू होती है वही ब्रह्मांड पे लागू होती है, या वाइस वर्सा। तो इसीलिए हो सकता है इस कहानी में बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है वो ना दिया हो, लेकिन हिंट्स जरूर दिए गए हैं। और एचपी भी आइए देखते हैं इसमें क्या कहती हैं, जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि इसका मीनिंग क्या है, एलेगोरिकल मीनिंग क्या है, तो वो बड़े ही आसान शब्दों में ये कहती हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि अव्यक्त अवस्था से शुरू होता हो और महाप्रलय के टाइम पे खत्म होता हो, महाप्रलय के अंत के टाइम पे खत्म होता हो, उसको कुछ शब्दों में या इवन कुछ किताबों के माध्यम से बताना असंभव है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इट इज एन एलेगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसीन एंड अननोन प्राइमेवल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुत आदिकाल की जो शक्तियां हैं, जो प्राइमेवल इंटेलिजेंस, जो आदि बुद्ध हैं या आदि शक्तियां हैं या महत हैं, जो इंटेलिजेंसेस हैं जिनको हमने भगवान का रूप कहा है, जिनको हमने पर्सोनिफाई कर दिया भगवान के रूप में, उनके द्वारा इस संसार के निर्माण की एक एलेगोरी है। फैशनिंग एंड डिफरेंशिएटिंग द शोरलेस ओशन ऑफ द प्राइमोर्डियल रेडिएंट एसेंस। तो वो जो ओशन, जो क्षीर सागर हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं पे दूध का एक सागर है, समुद्र है जिसपे भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द आदि प्रकाशित सत्व जो है, जो प्राइमोर्डियल सब्सटेंस है, जो ब्रह्म पदार्थ है, वो चारों तरफ फैला हुआ है, उसका ओशन है। और ये जो शक्तियां हैं, ये इस तत्व में मोशन पैदा करके मंथन के द्वारा उसमें डिफरेंशिएशन, अर्थात 1 से 3, 3 से 7, 7 से फिर एक जो सीरीज ऑफ हायरार्की है वो निकल रही है। और इस ओशन का जो सिंबॉलिज्म है वो ये है। और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि ये जो चर्निंग ऑफ द ओशन है, समुद्र मंथन है, और हेवन में जो वॉर है, सुर असुर संग्राम है, इनका जो संबंध है वो बहुत लंबा और बहुत गहरा है। लेकिन सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ये जो वॉर इन हेवन है, जो सुर असुर संग्राम है, ये हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। ये क्यों चलता रहा है? क्योंकि ये विरोधाभासी तत्वों को साम्य अवस्था में लाने की कथा है। और जब तक कि वो कह रहे हैं, ये जब तक कि जो भी कोई व्यक्ति या वस्तु इज बॉर्न इन मनवंतरा, इस मनवंतर में कोई भी एवरीवन एवरीथिंग जो पैदा हो रहा है, देयर इज वॉर इन हेवन एंड ऑल्सो ऑन अर्थ। यानी कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे भी एक वॉर है, उसको उस मंथन के द्वारा उसको जन्म देने की। और जब वो पृथ्वी पर पैदा हो रहा है तो वो स्वयं उस अमृत को पाने के लिए जो उसके अंदर का जो मंथन है वो लगातार चल रहा है। और वो कोई भी हो, वो कह रही है 14 रूट मनु या सीड मनु जो पूरी एक मनवंतर साइकिल पे शासन करते हैं, असंख्य शक्तियां, मनुष्य या कोई भी हो, जो भी उनसे निकलती हैं, हर एक में ये स्ट्रगल चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक जो फोर्स है वो अपने आप को साम्य अवस्था में लाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको लॉ ऑफ हार्मोनी भी कहा गया है, क्योंकि वो जो नियम है वो हर चीज को साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है। और जो बात उसमें कही गई है कि ये जो कहानी है पूरी, दिस रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमेवल मैटर। जो ब्रह्म पदार्थ है उसके डिफरेंशिएशन, अर्थात एक से, जैसा वो कहते हैं कि भगवान ने चाहा कि एको हम बहुश्यामी,
एक से मैं अनेक हो जाऊं, वो उसकी कहानी है। और ये एक ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी है। और ये केवल दिस इज ओनली द कॉस्मोजेनिकल एस्पेक्ट, वन आउट ऑफ द 7 मीनिंग्स, अर्थात इसके 7 मीनिंग निकलते हैं, लेकिन ये केवल इसका पहला मीनिंग है। और साथ ही वो जो हिंट देती हैं, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, कि मानव मन के बीच में ये जो स्ट्रगल है, ये चर्निंग है, मंथन है, वो चल रहा है। वो कह रही हैं, द वॉर इन हेवन हैड आल्सो इमीडिएट रेफरेंस to the evolution of the intellectual principle in mankind. This is the metaphysical key. तो मनुष्य के अंदर, जो मन के अंदर हर दिन जो चर्निंग चल रही है, मंथन चल रहा है, वो भी इसका एक मीनिंग है। तो समुद्र को हमने देखा कि ओशन जो है वो उस प्राइमोर्डियल तत्व को बता रहा है जो कि चारों ओर है, जिससे कि ये सारा ब्रह्मांड पैदा हो रहा है और प्रलय के टाइम पे जिसमें सब समा जाएगा। और मंथन अर्थात मोशन देना। किसी भी चीज को जब हम मथते हैं, अर्थात हम उसमें मोशन पैदा करते हैं, जिसके कारण एनर्जी से वो सारे रूप, और रूप से वो सारे फोर्सेस पैदा होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पैदा होते हैं, और कॉन्शियसनेस का भी विकास होता है। और जितने भी ये रत्न निकल रहे हैं समुद्र से, दे कैन बी कंसीडर्ड मेयरली एक as an illustrative of the infinite variety of things which appear during course of evolution in manifested universe। अर्थात इस पूरे मनवंतर में जो भी चीजें निकल रही हैं, उनके प्रोटोटाइप के रूप में हम इन 14 रत्नों का जो कहा गया है, उनको उनका एक सिंबोलिज्म मान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इनका वास्तविक अर्थ क्या है, ये एच.पी. ब्लॉवात्स्की कहती हैं कि द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या जो अकल्ट पर्पसेस हैं इन 14 रत्नों का, ये केवल एक्सप्लेन किए जा सकते हैं एट द 4th इनिशिएशन, कैन नॉट बी गिवन हियर। यानी जब मनुष्य अपने इवोल्यूशन में 4थी इनिशिएशन तक पहुंच गया है, अर्थात अर्हत लेवल तक पहुंच गया है, तब उसको इस एलेगोरी का संपूर्ण अर्थ समझ में आएगा। उससे पहले उसको शायद 1, 2 या अलग अलग जितने वो प्रयास कर सकता है उसके अर्थ निकाल सकता है, लेकिन उसका संपूर्ण अर्थ जानने के लिए उसको अपनी चेतना को इवॉल्व करना पड़ेगा, और तभी वास्तविक अर्थ इसका समझ में आएगा। साथ ही इसका एक और अर्थ वो बताती हैं कि हिंदूज है, मतलब ये जो कहानी है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह कही गई है। और एक जगह ऐसा भी आया है कि जो ब्रह्मांड में जब चारों तरफ ये पदार्थ फैला हुआ है, उसमें विष भी है और अमृत भी है। विष अर्थात पॉइजन, डेथ और इविल का विष। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई केमिकल है, वो जो विष निकल आया है जिसको कि भगवान शंकर ने पी लिया, या अमृत भी कोई केमिकल नहीं है, लिक्विड नहीं है जिसको कोई पी लेगा और वो इस शरीर में अमर हो जाएगा। इट इज एन इमॉर्टैलिटी बेस्ड ऑन विजडम, नॉलेज एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसमें चूंकि अमृत सभी गुणों के बियॉन्ड है, अनकंडीशनड है, लेकिन फिर भी जब वो इस संसार के बीच में रहता है और ईविल के साथ मिक्सअप हो जाता है, तब भगवान विष्णु, जो कि यहाँ पे एक शाश्वत नियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समय समय पर ब्रह्मांड को एक्टिविटी में लाते हैं और उसमें से चर्निंग के माध्यम से उस अमृत को बार बार बाहर निकालते हैं। और इसमें वो देवताओं, असुरों और नागों का सहारा लेते हैं। भले ही नागों और असुरों और दैत्यों को हम नेगेटिव समझते हो, लेकिन बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको भी हम समझे कि असुर कौन है। असुर, अब हम बुरा मानने लगे हैं कि सुर का ऑपोजिट है असुर, लेकिन नहीं। प्राचीन काल में असुर शब्द बना था असु से, अर्थात ब्रेथ, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एचपीवी लिखती हैं, ब्रेथ। और रा मीन्स टू पजेस एंड टू ग्रांट, यानी वो शक्ति जो प्राण दे भी सकती है और ले भी सकती है, अर्थात इट इज अ क्रिएटिव गॉड। और ऋग्वेदा में जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं उनके लिए इसको उपयोग किया गया है। और यही असुर शब्द जो है वो ज़ोरेस्ट्रियन धर्म में अवेस्तन लैंग्वेज में अहुर हो गया है, अहुर माजदा, जहां पे वो उसको कहते हैं। लेकिन बाद में असुर को हम असुर कहने लगे, अर्थात सुर गुड और असुर
विपरीत। इसी तरह जो दैत्य हैं, दैत्य भी वो हैं जो दे आर ऑल्सो गॉड्स who rebelled and regarded as among the asuras, जो कि अलग अलग बेसिकली उन्होंने विरोध किसका किया, सेरिमोनियल रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का, उसका उन्होंने विरोध किया। तो वो कोई ऐसे बुरे सेंस में हम नहीं ले सकते कंप्लीटली। और इसीलिए, और जो नाग हैं वो कौन है, नाग हैं वासुकी। वो जितने भी नाग हैं, वो चाहे शेष नाग हो, अनंत हो, वासुकी हो, जहां कहीं भी उनका उपयोग आता है उसको हम सिंपली कनेक्ट्स हिम डायरेक्टली विद इनिशिएशन, क्योंकि नाग और ड्रैगन ऑल्सो आर ऑफ विजडम, अर्थात वो विजडम को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जो इस उसमें नाग हमने देखे वासुकी, वो एक्चुअली बेसिकली इस दे आर शोइंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑल्सो। और देव और दैत्य, ये दोनों शक्तियों का, दोनों ऑपोजिट शक्तियों का इस संसार में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं दो बेसिस पे ये पूरा संसार चल रहा है। देवास हेल्पिंग द डिवाइन विल डायरेक्टली एंड दैत्यास हेल्पिंग इनडायरेक्टली। जैसे अगर हमें अपना शरीर को डेवलप करना है, मसल्स बनानी है, तो हम वजन उठाते हैं। तो वजन उठाने और जो वजन का जो अपना फ्रिक्शन है अगेंस्ट आवर हैंड्स, जब तक वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा इवोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए दोनों ही शक्तियां, सुर असुर हो, प्लस माइनस हो, या देव और दैत्य हो, वो दोनों ही इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी हैं। ये इसको अगर हम समझें तो एट सच लेवल देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली बैड और एब्सोल्युटली गुड, देयर इज ओनली जो भी जिसकी जरूरत है उस प्रोसेस में उस फोर्स को यूज किया जाता है। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि ए स्पेशल हेल्प इज ऑलवेज गिवन बाय द डिवाइन फोर्सेस। ये जो पूरा इवोल्यूशन चल रहा है, जब कभी भी उसमें कोई ऐसी बाधा पैदा हो जाती है, जैसा हमने देखा कि मंदार पर्वत को उठा के पहुंचाना, और जब वो डूबने लगा तो कूर्म अवतार में भगवान का आना, या मोहिनी रूप में आना, तो ऐसे या अलग अलग अवतारों के रूप में हम देखते हैं जब डिवाइन चेतना आती है। तो जब भी इवोल्यूशन में कोई ऐसा बाधा पड़ती है, या जब भी इवोल्यूशन को कोई पुश देना होता है, जैसा कि हर सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में एक पुश दिया जाता है उस डिवाइन इंटेलिजेंस के द्वारा, तो वो डिवाइन इंटेलिजेंस, वो शक्तियां जो हैं वो अवतरित होती हैं। और साथ ही वो डिवाइन शक्तियां उन चेतनाओं को मदद करती हैं जो कि उस मदद के हकदार हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे देवताओं को अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी हैं वो फेवर कर रहे हैं, जबकि देव और असुर, सुर असुर देव दैत्य दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि उनको फेवर किया जा रहा है अमृत के लिए? और या राम बाली युद्ध में राम जो है वो सुग्रीव की मदद कर रहे हैं, या कर्ण अर्जुन युद्ध में इंद्र जो है वो कर्ण की अर्जुन की मदद कर रहे हैं कर्ण के साथ छल करके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डिवाइन हेल्प इज ऑलवेज गिवन टू दोज हु लिव अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉज एंड फ्लो विद द इवोल्यूशनरी करंट। अगर हम अपने जीवन को नेचुरल लॉज के आधार पर जीना शुरू कर दें तो ऑफ कोर्स हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से वो कर्म आएंगे, लेकिन साथ ही उसी नियम के अकॉर्डिंग हमें डिवाइन हेल्प भी मिलेगी। और वो किसको मिलेगी? जो इस पाथ को फॉलो करते हैं, जो राइट हैंड पाथ को फॉलो करते हैं, ना कि लेफ्ट हैंड पाथ को। क्योंकि और राइट हैंड पाथ वही है कि अगर हम अपने हृदय में परफेक्टली प्योर रहें और अपने अंदर के जो अहम भाव है, जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस है, उसको पूरी तरीके से खत्म करें, तो वो वही हमारा सुरक्षित कवच हो जाता है। और इसको अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखें, कॉस्मोस से लेवल पे हटके अगर हम इस अमृत को स्वयं के ऊपर लागू करके देखें, तो इंद्र हमारा मन है, ऐरावत जो हाथी है वो हमारा सेंसेस है। सेंसेस के कंट्रोल होके जो भी हमें दिव्य ग्रेट गिफ्ट मिलते हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, और हम हमारे जो दुर्व्यवहार से, या कह लीजिए हमारी सेल्फिशनेस से, हमारा वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो छिनती हैं, या हमारा डिवाइन स्वभाव से हम अलग हो जाते हैं, और हमारा लोअर नेचर अर्थात असुर दैत्य हमारे नेचर पे हमारे काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं।
ऐसे में जब पुनः हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ या आध्यात्म मार्ग पे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मा जी को लेके हम विष्णु जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी इज काइंड ऑफ हमारे लिंक, द हायर मनस बिटवीन द लोअर एंड द बुद्धि। बुद्धि इज विष्णु जी। तो हम विष्णु जी के पास जाते हैं, और ऐसे में विष्णु जी या बुद्धि हमें केवल ये गाइड नहीं करती कि हम क्या एकदम से मिल जाएगा, बल्कि इट गाइड्स टू, अभी हम इतने वीक हैं कि अभी हम अपनी कमजोरियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू लिव विद देम एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू डेवलप दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम आवर वीकनेसेस। और वो स्ट्रेंथ वीकनेसेस को हम कैसे ओवरकम करते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डूज एंड डोंट्स। उसको हम कह सकते हैं जो हमें करना है, सुर असुर कह सकते हैं, देव दैत्य कह सकते हैं, जो हमें नहीं करना है। प्राण और अपनी बॉडी को अपने आसनों से सही करना है। उस एफर्ट को जब हम करते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। और ऐसे में साथ ही प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात जो टॉर्टोइज के रूप में भी भगवान आ रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार जो टॉर्टोइज है वो अपने सभी अंगों को अंदर कर लेता है, उसी तरह अगर हम अपने सभी सेंसेस को अंदर की ओर खींच के वैराग्य को प्रयास करें तो वो प्रत्याहार। और मंदार पर्वत, अर्थात मंदार जो है वो मन, अर्थात और धारणा मीन्स वन लाइन और वन पॉइंट, अर्थात कंसंट्रेशन, धारणा। तो प्रत्याहार, धारणा, और उसके बाद हम तभी जब इस स्टेट में आते हैं तो जो वासुकी है, अर्थात हम उसको कुंडलिनी शक्ति कह लें, या वो जो ज्ञान की हमारी स्पिरिचुअल इंट्यूशन है वो जागृत होती है। और ये सब रत्न भी निकलते हैं उसमें। रत्न अर्थात सिद्धि निकलती हैं, हमें बहुत सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ये सब भी एक डिस्ट्रैक्शन है। और अगर हम इसमें फंस गए तो हम अंतिम जो स्रोत है, जो एम है अमृत, अर्थात आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, उस तक हम नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए इन सब के एंड में उससे पहले विश भी निकलता है। व्हाट इज विश? विश इज जो हमारी इस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस में जितने हमारी, जिसको जय कृष्ण मूर्ति कह लीजिए, कंडीशनिंग्स कहते हैं, प्रिजुडिसेस कहते हैं, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सब दबे हुए हैं, वो सब निकलने बाहर शुरू होते हैं। और अगर उनका एक ही उपाय क्या है? शिव जी उसको धारण करते हैं, अर्थात शिव जी इज द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अर्थात उसको हमें केवल चॉइसलेस अवेयरनेस के माध्यम से ऑब्जर्व कर लेना है, रिएक्ट नहीं करना है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दैट पॉइजन। और अंत में फिर वो अमृत, जब ये पूरा पॉइजन भी निकल जाएगा हमारे अंदर से, तभी आत्मज्ञान का या ब्रह्म ज्ञान का वो जो अमृत है वो हमारे अंदर पैदा होगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अमृत है ये वास्तव में वो ऐसा अमृत नहीं है कि जिसको हम पी लें और हम इस शरीर में हमेशा के लिए अमर हो गए। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। जब भी अमरता की बात कहीं भी कही जाती है, कही गई है किसी भी पुराण में या किसी भी डॉक्ट्रिन में, दैट अमरता, दैट इमॉर्टैलिटी इज नॉट ऑफ द बॉडी। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण बात है समझने की। दैट इमॉर्टैलिटी इज नॉट ऑफ द बॉडी, क्योंकि कोई इस बॉडी में हमेशा नहीं रह सकता। ये बॉडी अगर हम इसको बहुत नियम के साथ भी जीते हैं तो ठीक है, जैसे महात्मा लोग इस बॉडी को यूज करते हैं तो उनके शरीर 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक हो सकता है वो रख सकते हो, लेकिन कभी ना कभी वो शरीर जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज अवश्य होगा। और साथ ही जो अमरता प्राप्त लोगों के नाम आते हैं, हम लोग 7 अमर प्राणियों के नाम सुनते हैं, वो भी अमर शरीर में नहीं है, वो भी किन्हीं कारणों से अमर हैं, अर्थात वो उन कारणों को हम नहीं भूल सकते हैं, इस वजह से उन्हें अमर कहा गया है। और इसको एचपीबी ब्लग और भगवान अगस्त ऋषि को कोट करते हुए कहती हैं कि वो जब वो कहते हैं कि राजयोग से उस अमरता को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो कहती हैं कि ये इस शरीर में अनंत काल के लिए अमरता की बात नहीं कर रहे हैं भगवान अगस्त, बल्कि वो उस जो हमारे अंदर जो हायर सेल्फ है,
जो हायर ईगो है उसकी अमरता की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उसकी चेतना में कोई ब्रेक नहीं लगेगा 2 जन्मों के बीच में। क्योंकि अभी हमें पुराना जन्म भी नहीं पता है, आगे क्या होना है ये भी नहीं पता है, लेकिन जब हम अपने आत्म स्वरूप में एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर संपूर्ण जगत जो है, वो अस्तित्व जो है, वो हमारे लिए इट बिकम्स नाउ। ना उसमें कोई पास्ट प्रेजेंट की बात रहती है, ना फ्यूचर की बात रहती है। और इस प्रकार दिस मे बी रीच्ड ओनली बाय सच ग्रेट एडेप्ट्स एज भगवान अगस्त्य वाज हिमसेल्फ। अर्थात वो इस तरीके से करोड़ों युगों तक कंटिन्यूअसली रह सकते हैं। और यही बात एडेप्ट्स पे भी लागू होती है, वो कहती हैं। और इस तरीके से इस कहानी को अगर हम समझें तो ये जो अमृत प्राप्ति है, ये कोई लिक्विड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जिसको हम पी लेंगे और वो कहीं दबा हुआ है या कहीं से हमें कोई प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये अमरता की बात अगर अपने लेवल पे देखें, इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो आत्मज्ञान की बात हो रही है, विजडम की बात हो रही है। और अगर हायर उसमें देखें कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे, तो ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन की बात हो रही है, और उसमें जितने भी इस संसार में चीजें बन रही हैं उनकी बात हो रही है। इसी से मिलता एक अंत में खत्म करने से पहले कि बाद में लेटर कुछ लोगों ने इस समुद्र मंथन के साथ कुंभ मेला को भी जोड़ दिया, कि जब दैत्य लोग उस अमृत के पात्र को लेके इधर उधर दौड़ रहे थे, तो उसकी जो कुछ बूंदें गिरी 4 जगह, हरिद्वार, प्रयाग, त्रयंबक, नासिक और उज्जैन में, तो वहां जो है वो अमृत गिरा, और उस वजह से वो जगहें जो है वो बहुत पवित्र हो गई। और वहां जाके अगर आप मतलब स्नान करते हैं या आप स्नान कर लेते हैं, तो आपके सभी पापों का जो है वो नाश हो जाता है और आप तुरंत आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कुंभ है या प्रयागराज भी है, प्रयागराज को तुलसीदास जी कहते हैं कि वो संतों के जमावड़े की बात कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रसन्नता और आनंद से भरा है। वो प्रयाग गतिमान प्रयाग है। प्रयाग को सभी होली प्लेसेस का किंग कहा जाता है, राजा। तो वो बाल कांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां भी संत जमा हो जाते हैं वहीं आनंद और प्रसन्नता होती है। और इस तरह संतों का जमावड़ा ही एक्चुअली वास्तव में प्रयाग है। इसलिए उनके लिए प्रयाग या ये जो जगह है वो कोई फिजिकल ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है, बल्कि संतों का संग है, सत्संग है। और साथ ही वो ये कहते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आप प्रयाग में जाके या आप इन जगहों पे जाके स्नान कर लें नदी में, तो आपके सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो क्या ऐसा किसी के साथ होता है? क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि वो गया और वहां पे स्नान किया और उसके सभी पाप धुल गए या उसका जीवन जो है पर कंप्लीटली चेंज हो गया और आनंदित हो गया? नहीं। लेकिन जब हम संतों के संग रहते हैं, सत्संग करते हैं, तो वास्तव में अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व करें, तो वास्तव में उस समय के लिए कम से कम हमारे दुख, हमारी अशांति, हमारी चिंताएं सब दूर हो जाती हैं, और उसकी जगह आनंद, शांति और एक प्रसन्नता ले लेती है। हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, और ये इफेक्ट इमीडिएटली होता है। और ये स्वयं तुलसीदास जी बालकांड में कह रहे हैं। और उस नदी में, इस नदी में डुबकी लगाने का मतलब ये है कि वो जो हम सत्संग ज्ञान की जो गंगा में हम हैं इस समय, उसमें हम इतना डूब जाएं, उसको अपने अंदर बाहर अपने अस्तित्व में ले लें कि वो हमारे दैनिक जीवन का एक पार्ट बन जाए। और इस तरह वो जो डुबकी है, जो कुंभ है, जो उस कुंभ का जो वास्तव में जो अमृत है, वो इन्हीं संतों का सत्संग है। और लेकिन ये जो कहानी है ये भी बाद में जोड़ी गई है समुद्र मंथन के साथ, इसलिए कितना सत्य है नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और हालांकि इसमें शेयर करने के लिए बहुत है, लेकिन समय हो गया है। और मैं इसके साथ ही माथुर जी यहाँ पे अंत करना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी एंड शेयरिंग दिस, फॉर अलाउइंग मी। थैंक यू शिखर जी for beautifully explaining the symbolism of allegory
of Samudra Manthan in simple words, enumerating the principles of theosophy. अब मैं चाहूंगा अगर किसी ने कुछ एडिशन करना है या किसी ने कुछ बात कहनी है तो कहें। शिव कुमार पांडे जी। हाँ सर, हाँ जी जी, राजीव जी। हाँ हाँ शिखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया आपका जो प्रस्तुतिकरण था, बहुत अच्छा। और बहुत मेहनत किया आपने बहुत हम लोगों को समझाने में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अभी भी बहुत हमारा समाज जो है अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन के उससे कॉस्मोजेनेसिस से गुरु गुजर रहा था, तो मैंने काउंट किया, शायद 131 जगह उन्होंने विष्णु पुराण का उदाहरण दे रखा है, जबकि हमारे अपने समाज में कोई इधर उधर फेंका रहता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ आपने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि इन सारी जो एलॉगरीज हैं उनके जो अर्थ है, इसके साथ मैं ध्यान को जोड़ना चाहूँगा कि हम जो मन के विषय में अपने चिंतन पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहारों पर जो ध्यान करते हैं, जो मंथन करते हैं, मंथन उसका एक ये भी आता है, मंथन करते हैं। तो हम देखते हैं कि ध्यान की प्राथमिक अवस्था में जब हम कंसंट्रेट करने जाते हैं, तो जितने सारे बुरे विचार होते हैं, जितने सारे अशुभ विचार होते हैं, जितने सारे कुसंस्कार होते हैं, वो सर्वप्रथम ऊपर उठ करके आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तमाम सारी हमारी घृणा भीतर दबी है, सब ऐसी चीजें दबी हैं, क्रोध दबा है, वो कहीं न कहीं से उभर के आता है और हमें परेशान करता है। तो ये कथा ये भी बताती है कि अगर मंथन करते चले जाएंगे तो इन विषयों से चल रहे हैं हमारे मंथन से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अमृत भी बाहर निकलेगा और हम इससे मुक्त हो जाएंगे, इस विष से। तो क्योंकि इस वृक्ष को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हायर माइंड माने हायर कॉन्शियसनेस है, वो इस समाप्त करती चली जाती है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सब समाप्त हो जाते हैं, हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। तो देखिए यहाँ भगवान शिव का आना और उसको पीने का अर्थ यही है कि जितनी भी हमारी बुराइयां हमारे साथ प्रकट होती हैं, उन्हें हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो पी जाती है और फिर अमृत जो है धीरे करके बाहर आता है। तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है इस अपने व्यक्तिगत माइंड के मंथन में, मन के चर्निंग में। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि अभ्यासे न तू कौन्तेय वैरागे न च गृह्यते। तो ये मैं इससे कनेक्ट किया, एकदम से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आई शुड कनेक्ट इट टू जो ध्यान का प्रोसीजर है और जो फाइंडिंग है। धन्यवाद, धन्यवाद राजीव जी और शिखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सर। किसी और ने कुछ ऐड करना है प्लीज। नमस्कार जी, मैं जी हाँ नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। मैं पहले तो सब इनका अग्निहोत्री जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे मतलब जिसके बारे में बड़ा फैंटेसी के हिसाब से बताया जाता है, इन्होंने बड़े साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी एलिगोरी दी। और उसके ऊपर जो पांडे जी ने जो कमेंट किया वो तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, सोने पे सुहागा कर दिया। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने ये कहानी कई बार पढ़ी थी, किंतु अब इसका कुछ कुछ मतलब समझ में आता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको कुछ ऐड करना है? Brother Shikar, thank you very much. I understood most of it. Thank you. Thank you, Sister Jasmine. I was using Hindi. I thought it Yes, might be no. I could understand. I could put everything together. Thank you so much. Okay, thank you so much for attending. किसी और ने कुछ ऐड करना है? अदरवाइज टाइम हो रहा है, अब हम क्लोज करने की तरफ चलेंगे। राजीव गुप्ता जी। हेलो राजीव। एनीवे अगर किसी का और कोई एडिशन या क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम ये अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट हमारी मीटिंग एसके पांडे जी लेंगे, नेशनल लेक्चरर जो हैं, और टॉपिक होगा हमारा 29 मई को
गुरु की खोज। और समय प्लीज नोट कर लें क्योंकि टाइम चेंज हो गया है हमारा, ये आज से 5:30 to 6:30 हो गया है, इसलिए हम लोग इस समय को जरा नोट कर लें। और नेक्स्ट टाइम एस.के. पांडे जी का टॉक है। अब हम क्लोज करते हैं मेरे प्रेयर के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति